برادران اسلام، جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، ہم سب اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ رسول جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور نبی کی زندگی پر، رسول کی حیات پر، ان کی حیات کے حوالے سے بہت سی احادیث مبارکہ، آیت قرآنیہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کل زندہ تھے ویسے آج زندہ ہیں۔ احیاء فی قبورہم حیات حقیقت، یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں جیسے کل زندہ تھے ویسے جیسے ظاہر میں حیات میں اپنی زندہ تھے، آج وہ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں۔ اور بہت سی حدیثیں ہیں، ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ نبی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سب حدیثیں بتا رہی ہیں کہ سرکار اپنی قبر مبارک کے اندر بھی زندہ ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہت سی آیات مبارکہ، حدیث کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، یہ واقعے کے ذریعے سے آپ کو بتا سکوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کیسی ہے۔ اور آپ نے بہت سے علماء سے سنا بھی ہوگا اور سنتے رہتے ہیں۔ آپ نے بادشاہ وقت نور الدین کا نام سنا ہوگا، اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر بزرگ ہیں، اور بہت نیک، پرہیزگار، متقی، اللہ کے بہت مقرب بندے ہیں، حضرت نور الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے، 575 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ، کیونکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ جب سوتے تھے تو پہلے تہجد کی نماز پڑھتے، اوراد و وظائف پڑھتے، عبادت و ریاضت کرتے، اس کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے جایا کرتے تھے، آرام فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ نے نماز تہجد سے فارغ ہوتے ہیں، نماز پڑھ کر فارغ ہونے کے بعد اپنے بستر پر تشریف لے جاتے ہیں، سوتے ہیں۔ جیسے ہی سوتے ہیں کہ نصیبہ بیدار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا تشریف لائے اور فرمایا، نور الدین، میری قبر کو دو لوگ کھود رہے ہیں، وہ میرے جسم کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کی علامت بھی بتائی، اس کی نشانی بھی بتائی، اس کی پہچان بھی بتائی کہ دو کیری آنکھ والے، بھوری آنکھ والے دو شخص جو ہیں وہ میری قبر کو کھود رہے ہیں۔ حضرت نور الدین بیدار ہوئے، بڑا حیران و پریشان، متفکر تھے۔ پھر وضو فرماتے ہیں اور پھر کچھ نوافل ادا کرتے ہیں، ادا کرنے کے بعد پھر اپنے بستر پر آرام فرماتے ہیں۔ پھر نیند کا غلبہ طاری ہوتا ہے، سوتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور بھی آئیں وہی خواب جو اس سے پہلے دکھایا تھا، اے نور الدین، اٹھو، بیدار ہو اور میری حفاظت کرو۔ دو بھوری آنکھ والے، کیری آنکھ والے دو شخص میری قبر کو کھود رہے ہیں۔ بادشاہ وقت حضرت نور الدین بیدار ہوتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، بہت متفکر ہیں، پھر نفل ادا کرتے، کچھ وظائف پڑھتے، پھر سوتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ سوتے تو بھی آئی نہیں، پھر اسی طریقے کا خواب دیکھتے ہیں، تب بہت حیران ہو جاتے ہیں اور اپنے وزیر کو بلاتے ہیں۔ وزیر بڑا دانش مند، ہوشیار شخص تھا، تاریخ میں اس کا نام جمال الدین بتایا گیا ہے۔ وہ آتے ہیں اس کے سامنے
हज़रत नूरुद्दीन पूरा वाक़या जो ख्वाब में आपने देखा वो पूरे हालात अपने वज़ीर के सामने बयान करते हैं। कहते हैं ताख़ीर न करो, अब आराम करने का वक्त नहीं है। और वज़ीर ने भी यही कहा कि ठीक है हुज़ूर, तैयारी की जाए और मदीनतुल मुनव्वरा के लिए रवाना हो जाए। मिस्र से मदीनतुल मुनव्वरा जाने के लिए हज़रत नूरुद्दीन ने हुक्म दिया। काफ़िला तैयार हो जाता है, ऊँट तैयार किए गए, घोड़े तैयार किए गए, सारा साजो सामान लादा गया। और नूरुद्दीन के खादिम ने, वज़ीर ने कहा कि सरकार ये बात किसी से बताई न जाए, पोशीदा, इस राज को पोशीदा रखा जाए। बताया जाता है कि 20 ऊँट थे। बाद रवायतों में और भी चीज़ें ज़्यादा बताया गया है, मगर इसी को मान लेते हैं कि 20 ऊँटों सादो सामान के साथ तैयार किए गए और मदीनतुल मुनव्वरा के लिए मिस्र से ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब रवाना हुआ। 16 दिन तक मुसलसल रात दिन ये सिलसिला, ये काफिला चलता रहा। रास्ते में आराम करते हैं, बस नमाज़ें वक्त पर अदा करते हैं और चलते रहते हैं। 16वें दिन हज़रत नूरुद्दीन का ये काफिला मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन पर दाखिल होता है। सरहद मदीना, अदब देखें, सुभान अल्लाह, नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि के जब सरहद मदीना में पहुँचते हैं, काफिले को रोक देते हैं, गुस्ल फरमाते हैं, वज़ू फरमाते हैं, नफल नमाज पढ़ते हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहर मदीनतुल मुनव्वरा में हज़रत नूरुद्दीन हाजिर होते हैं और हर चहार जानिब ऐलान हो जाता है। अब खादिम ने अपने हिकमत अमली के तौर पर हिकमत से लोगों में ऐलान कर दिया कि बादशाह वक्त, मिस्र के बादशाह हज़रत नूरुद्दीन मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हुए हैं और बड़ा सारो सामान लेके आए हैं लोगों में तकसीम करने के लिए। ऐलान हो गया। और वो कैद साली का ज़माना था, गुरबत का ज़माना था, लोग परेशान थे, जौक दर जौक, जमात दर जमात लोग हज़रत नूरुद्दीन की बारगाह में हाजिर होने लगे, मुलाकात करते। हज़रत नूरुद्दीन बड़े गौर व फिक्र के साथ, अभी कोई राज मुनकशिफ नहीं हुआ, किसी को कुछ बताया नहीं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं और इनामात तकसीम कर रहे हैं, वज़ाइफ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जो साजो सामान लाए थे वो साजो सामान लोगों में मदीनतुल मुनव्वरा के लोगों पर खर्च कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, एक एक से मुलाकात कर रहे हैं। ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। जब सब लोगों ने मुलाकात कर ली तो हज़रत नूरुद्दीन ने फरमाया कोई बाकी तो नहीं रह गया, कोई और तो नहीं है मुलाकात करने के लिए। लोगों ने कहा नहीं हुजूर, सब लोग आ गए। फिर आपने फरमाया नहीं, अभी कोई बाकी तो नहीं रह गया, तलाश कर लिया जाए, ढूंढ लिया जाए। लोगों ने कहा नहीं हुजूर, सब लोग आ चुके हैं, कोई बाकी नहीं रहा। फिर हज़रत नूरुद्दीन की निगाहें तलाश कर रही थी, जुस्तजू में थी वो शख्स क्या जिनको ख्वाब में बताया गया है, भूरी आंखों वालों को वो नजर नहीं आ रहे, सारे लोग आ गए। फिर आपने लोगों से कहा क्या कोई बाकी तो नहीं रह गया, क्या तलाश कर लिया जाए, मालूम कर लिया जाए, कोई शख्स बाकी तो नहीं रहा जिसको इनाम इकराम दिया जाए, मालो सर दिया जाए, पैसा दौलत दिया जाए, सामान दिया जाए। लोगों ने कहा नहीं। तो जब ज़्यादा असरार आपने किया तो एक शख्स ने कहा हाँ हुजूर, 2 शख्स आए, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, बड़े नेक हैं, मगरिबी बुजुर्ग हैं, काफ़ी दिनों से हज के मौके पर आए थे। उसके बाद वो लोग बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब में ठहरे हुए हैं, कोने में आराम कर रहे हैं और वहीं उनका बिस्तर लगा। वो बड़े नेक हैं, अहले मदीना के ऊपर बड़ा माल खर्च करते हैं, बड़े परहेजगार हैं, 5 वक्ता नमाज जन्नत की क्यारी में पढ़ते हैं, मस्जिद क़ुबा की हाज़िरी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले जाते हैं रोज़ वो लोग, और नमाज पंजगाना मस्जिद नबवी में पढ़ते हैं और बड़े परहेजगार लोग अहले मदीना पे बड़ा माल वसूल खर्च करते हैं। बादशाह वक्त में काम को बुलाया जाए। हज़रत नूरुद्दीन के हुक्म पर उन लोगों को बुलाया गया। वो दोनों भूरी आँख वाले, वो दोनों नसरानी हाजिर किए गए। हज़रत नूरुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने देखा तो फ़ौरन पहचान लिया बेशक से। फ़ौरन पूछा आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं? वो दोनों शख्स कहते हैं हुजूर, हम हज करने के लिए आए थे और हमने चाहा कि कुछ दिन, कुछ मौका, कुछ औकात, कुछ लम्हात, कुछ दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुर्ब में रह लें, कुछ इबादत और रियासत कर लें, कुछ लम्हात, कुछ औकात, कुछ दिन हमारे बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर जाए। बादशाह वक्त ने सख्ती से कहा बताओ तुम कौन हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो बड़े सीधे साधे मगरिबी लोग हैं, हम तो सिर्फ इसलिए आए कि हमें हमारा कुछ लम्हा, हमारे कुछ दिन बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर जाए। बादशाह वक्त ने बड़ी सख्ती के साथ पूछा मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं। बादशाह ने कहा इन दोनों को यही रखा जाए, इनकी क़यामगाह कहाँ है? बोले वो किनारे एक जगह पर है, कोने में, मस्जिद नबवी के करीब में। बहरहाल बादशाह नूरुद्दीन ने फरमाया इनको दोनों को यहीं ठहराया जाए, इनको दोनों को यहीं रोको,
खुद गए और देखा तो वहाँ उनका था तो सामान उलट पलट के देखा, तस्बीह रखी हुई है, किताबें रखी हुई है और सामान रखा हुआ। अब बादशाह वक्त हज़रत नूरुद्दीन बड़ा मुतफक्किर है, बड़ा परेशान है, बोला आदमी वही है और मेरे आका ने जो मुझे जो ख्वाब में जो बातें बताई वो सारी बातें सही हैं, एक एक पर मेरा ईमान और अकीदा है कि मेरे सरकार ने जो बताया वो सब सही है और आदमी भी वही है, मगर ये राज मुनकशिफ कैसे हो, ये मालूम कैसे हो। बादशाह बड़ा मुतफक्किर था, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, बड़ा हैरान और परेशान थे। इतने में क्या देखते हैं, देखा उनका मुसल्ला बिछा हुआ है, मुसल्ले को आपने उठाया तो नीचे चटाई बिछी हुई थी। चटाई जब उठाई तो देखा कि एक सुरंग है और वो सुरंग रोज़े रसूल के करीब तक पहुंच चुकी थी। कुछ ही वक्त था कि वो जिस्म मुबारक आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक तक वो दोनों नसरानी पहुंच जाते। बादशाह बड़ा सख्त बड़ा नाराज हज़रत नूरुद्दीन आए और उनसे पूछा बताओ, तो उसने बताया कि फला ईसाई बादशाह ने मुझे इतना इतना मालो जर दिया है, इतना इतना पैसा दिया और इतना इतना देने का वादा किया है और मैं वादा लेकर आया था कि जिस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म निकाल कर वहाँ पहुँचाऊँ, मुंतकिल करूँ। अल्लाह अकबर। बादशाह वक्त को जला लाया और फौरन उन दोनों की गर्दन को मार दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया, मेरे मौला तेरा फضل है, तेरा करम है, तेरा एहसान है कि तूने मुझसे ये काम ले लिया और मेरे आका ने मुझसे ये काम ले लिया।